Hello students, good morning. It is your civics period, chapter 3, electoral politics. Topic is features of a democratic election. In previous videos, two videos, we have studied about few part of feature of a democratic election. In a democratic setup, people participate in election to determine their representatives at different level. Some of the key features we have studied in previous two videos, like first, electoral limit, second, candidate selection, third, public interaction, fourth, procedure of balloting. Now we start fifth, suffrage. Fifth feature of democratic election is suffrage. Suffrage, political franchise or simple franchise is people's right to vote through the democratic process. It means suffrage is a arrangement in the rules and regulations of the country for the people's voting right. It means through this people get voting right. It is one of the most significant aspects of democratic elections. Suffrage is often conceived in terms of election of representatives. However, suffrage applies equally to initiative and referendum. Citizens become eligible to vote after reaching the voting age, which is typically 18 years as of 2012. Most democracies no longer extend different rights to vote on the basis of sex or race, where universal adult franchise, where universal suffrage exists, the right to vote is not restricted by gender, race, social status, or wealth. In this way, suffrage is through the suffrage people has given right. It means in a universal suffrage, the right to vote is not restricted by gender, race, social status or wealth. यानी इसमें जो है वेल्थ के आधार पर, स्टेटस, सोशल स्टेटस के आधार पर या रेस, जेंडर के आधार पर किसी तरह से वोटिंग राइट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. The people, those have completed a given age by the rules of the country, like in India, 18 years, have given right to vote through suffrage. Sixth, scheduling. सूचीबद्ध करना means election
को सूचीबद्ध करना, इसका कब डिक्लेरेशन होगा, इलेक्शन डेट का, कितने ईयर्स का होगा, हर 5 साल बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के लिए डिक्लेरेशन होगा, फिर नॉमिनेशन, रिटर्निंग ऑफ नेम, फिर इलेक्शन कैंपेन, ऑल दिस गिवन इन शेड्यूलिंग। एक शेड्यूल होता है जिसके अंतर्गत कब कब क्या क्या कैसे कैसे इलेक्शन में होगा, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री जनरल इलेक्शन फॉर द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय के बाद इलेक्शन होता रहता है, चाहे वह यूनियन लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। This is also maximum period of time for which गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर। और यही टाइम जो होता है मैक्सिमम टाइम होता है जितने समय तक गवर्नमेंट अपने पावर में होती है, और जैसे ही ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो गवर्नमेंट का पावर ख़त्म हो जाता है और न्यू गवर्नमेंट बनती है। When this period is over, the legislature is dissolved and new election are held। जैसे ही पीरियड समाप्त होता है न्यू इलेक्शन होता है, और जो पुरानी लेजिस्लेचर होती है उसको डिसॉल्व कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। The election commission puts into effect the machinery for holding an election in a vast country such as India. General election can be held in different phases within a period of few months. It is not compulsory then only one day whole country held election, but India is a large country, that is why general election can be held in different phases within a period of a few months। क्या होता है, इंडिया जैसे बड़े देश में एक ही दिन पूरे देश का मतदान नहीं हो जाता या पूरे स्टेट का मतदान नहीं हो जाता, बल्कि इसके कई फेजेज होते हैं जो महीनों चलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग समय पर चुनाव किया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेट या समय पर चुनाव किया जाता है, क्योंकि एक साथ यह संभव नहीं हो पाता। 7th कम्पिटिटिव स्पिरिट इन इलेक्शन। इलेक्शन में कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, यानी इलेक्शन के समय जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें प्रतिद्वंद्विता की भावना होती है, लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, कम्पिटिटर हो जाते हैं। इन ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इलेक्शन आर लाइक contests that take place among many political parties। जहाँ पर कई पार्टियाँ होती हैं, जिस देश में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो ये लोग आपस में इलेक्शन में क्या होता है, इनका अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है,
each party prepares a list of candidates who are going to contest from the various constituencies into which the country is divided. अपने सभी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, कैंडिडेट्स का एक लिस्ट तैयार करती हैं जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़े होते हैं. देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ ओपिनियन दैट argues against the existence of political parties, believing that having multiple parties leads to disunity among people. तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एक कम्पिटिटिव माइंड से जो लीडर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, अपनी वो व्यवस्था करते हैं और इससे क्या होता है, सब अपने अपनी व्यवस्थाओं में मस्त रहते हैं और अपनी पार्टी को विजयी बनाने का प्रयास करते रहते हैं. Those who hold this opinion further say that people get divided into factions or groups that are in disagreement which each other consequently conflict take place among people. क्या होता है, इलेक्शन के समय पब्लिक कोई इस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, तो इस तरह से दो लोग डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ सहमत कम होते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी पार्टी का व्यवस्था देखते हैं, जिससे आपस में लोग असहमति व्यक्त करते हैं कि हम उधर नहीं जाएंगे या इधर नहीं जाएंगे, हमारी ये पार्टी, हमारी उस पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा. इट इज़ ट्रू दैट competition at the time of election is necessary to a large extent. एक लंबे इलेक्शन के समय क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और एक वास्तविकता है, क्योंकि इसमें सभी लोग अपनी अपनी पार्टी और सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं, जिससे उनका अपना पक्ष मजबूत हो. इलेक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व ए contest among candidates belonging to different political parties. Each candidate stand in a election with the hope of victory. different parties के जो लीडर्स होते हैं वो सभी अपना different पार्टी के होते हैं और सभी अपना विक्ट्री यानी अपनी विजय निश्चित करने में लगे रहते हैं. इस तरह से एक अच्छा कंपटीशन होता है आपस में और यह एक अच्छी फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का. इस तरह से हमारा डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है